Okay, first of all, Richa ma'am, welcome to our channel. It's our pleasure that you are with us. Thank you. Okay, I have seen the Thank trailer. you. Okay, I have seen the trailer. It's so amazing and so powerful. But I personally want to know, what is Madam Chief Minister for you? It's just a film which is based on a girl who is um born into an oppressed family, loses her father when she's born, has to go through a lot of brutalization and a lot of violence, and then she ends up meeting somebody who mentors her and helps her uh, in realizing the leader that she can be, and then she becomes the chief minister of a state. That's basically the story. Okay, so हमने हमेशा देखा है ऋचा मैम, आप काफी पावरफुल किरदार को चूज करती हैं. व्हेन तारा का किरदार आपको आया था, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? इट वाज अ सडन डिसीजन और यू टुक लिटिल टाइम टू डिसाइड कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, आई डिडंट थिंक एक्चुअली एनीथिंग अबाउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे लगा करना चाहिए क्योंकि मुझे लगा ऐसी कहानियाँ ही कम आती हैं, खासकर मेन स्ट्रीम में तो बहुत ही कम आती हैं। और आई थॉट it's a really good part with a good director, and I wanted to tell that story. Okay, theaters में रिलीज हो रही है. How excited are you for that? Because of the lockdown, everyone are eager to go to theaters and watch the movie. Oh, really? I don't know. A lot of people are saying that they're afraid to go into the theater, so I'm happy to hear that. Film will release on Netflix after some time, but I would obviously want people to watch it in the theater because जब हमने shoot की थी तो pandemic जैसा कुछ था नहीं, and it was designed for the big screen. So, I mean, my director would also be happy if people go into the theater and watch it. Okay, मैम शूटिंग के टाइम की बात की जा सकते हैं. क्या कुछ मेमोरीज आपने बटोरी है? बिकॉज एवरी टाइम वी डू समथिंग वी गेन लॉट ऑफ मेमोरीज. तो क्या कुछ मेमोरीज आपने बटोरी है इस मूवी के साथ? I really liked shooting in the villages of India. It really gave me an insight into the kind of lives we lead as opposed to how everything is very different in a village. And I also bonded with people there and I tried to understand the problems they're having. So it was, I mean, I've shot a lot of films in and around Lucknow, but this one because it was we were mostly shooting. We shot a lot in villages, so it was quite interesting. चाहे वो कोई बाइक चलाने का सीन हो या ट्रैक्टर का सीन हो या कोई एक्शन का सीक्वेंस हो इस तरह का मतलब आई रियली लाइक शूटिंग इन द विलेजेस. वाओ. ओके मैम, लाइक जो आपका किरदार है तारा का, काफी पावरफुल किरदार है एंड इट्स द स्टोरी बेस्ड ऑन पॉलिटिकल. सो व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन you have done before like shooting? Before shooting, actually, my director gave me a few books to read, so I read those. I tried to understand the theme also, somewhere the context of the film also. So I read a bit about that. Yeah, that's it. And we had some diction workshop. मतलब diction के लिए हमने कुछ कुछ चीजें accent वगैरह experiment किया था. और फिर हमने डायलॉग्स की वर्कशॉप की, एक्टिंग की वर्कशॉप की, थोड़ा कैरेक्टर वर्क किया कि किस तरह से अ, उसके उसके बोलचाल पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा सा काम किया. तो उसके बाद मेंटल वर्क, फिजिकल वर्क में ऑब्वियसली बाइक चलाना ये सब किया. Okay, but it is so like amazing to see you riding a bike. Like, trust me. Thank you. Lots of girls are riding bikes now. It's great. Yeah, actually. Yeah, it's lots of fun. Exactly. Okay, ma'am, any inspiration you have taken from any female leader? Like, Actually, not just female leaders. I studied lots of politicians and how they would conduct themselves in public, how they would give speeches to try and connect with.
the person who's sitting at the back of the political rally, and it's like a concert. There are thousands of people. There's as many people. So yeah, I just tried to study how they would speak, how they would react, how they would hold their pauses, things like that. But both from male and female speeches. Some leaders have a knack of connecting with the audience. They are able to connect with their voters, with humor, like Lalu Prasad Yadav. Some people are very inspirational. They hammer it a lot, and they are able to reach the Yeah. person right at the end. So those kind of things I try to study, because she is supposed to be a very charming leader. ओके, लाइक फीमेल लीडर्स की बात की जा रही है, तो ये मूवी के ट्रेलर आने के बाद काफी लोगों ने इसे कनेक्ट किया विद मेनी फीमेल लीडर्स के. व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दैट? I think now I hope that people, when they actually see the film, they'll realize it's not a biopic of any kind. But I mean, that's what once they watch the film, they'll know कि किसी पे भी बेस्ड नहीं है, बल्कि डायरेक्टर ने बड़े बड़े नेताओं की लाइफ से छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके फिल्म में जरूर डाले वो, क्योंकि वो खुद एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रह चुके हैं. पर दैट्स इट. वो अलग-अलग एपिसोड्स अभी शायद आप न्यूज़ में भी देखें, कुछ चल रहा है देश में, उसको फ़िक्शनलाइज़ करके, थोड़ा एक्ज़ैजरेट करके, कहीं-कहीं थोड़ा कम करके अगर फ़िल्म में डाला गया है, तो इट्स लाइक दैट. दे हैव यूज्ड एलिमेंट्स फ्रॉम रियल लाइफ़, पर ये किसी पे आधारित नहीं है. Okay. So, ma'am, one thing, when after seeing the trailer, like it's so powerful. Even your role is so powerful. So I just want to know, like, how inspiring your journey was throughout shooting, like Madam Chief Minister की जितनी भी shooting हुई है, like how was your journey? How inspiring it was, and what sort of things you got to learn from this movie? I got learn a lot about many things to do with our country, how our villages are structured, lots of things about the caste system, how we are still primarily, um, you know, organized around it, and um, just the difficulties women in politics face. I learned a lot. I actually became very attached to my character Tara, and I wanted to do justice to her. I wanted to make sure that people understood her for the oddball that she was. So yeah, that's what I want. I mean, I want people to see a lot has gone into making this film actually. So now it's out there. I hope people just enjoy it and get entertained by it. Yeah, definitely they will. Okay, ma'am, आप आपके साथ साथ ऐसे कई सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं इस मूवी के अंदर, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या कुछ डिस्कशन, एनी पॉलिटिकल डिस्कशन यू हैड थ्रू आउट द शूट? Uh, no, I mean, the thing is, the people who I've worked with them before in different capacities. मैंने सौरभ सर के साथ एक दो और फिल्में की हैं. मानव के साथ कुछ नहीं किया था, अक्षय ओबरा के साथ भी नहीं, पर शुभ्रुदा के साथ पहले, बहुत पहले एक सेम थिएटर ग्रुप में थी. तो ये सारे इतने मंझे हुए कलाकार हैं कि पूरे टाइम मुझे तो इनसिक्योरिटी रहती थी, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं. और हर तरह के काम करते हैं. मतलब मानव लिखते भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं और एक्ट भी करते हैं, व्हिच कैन बी वेरी इंटिमिडेटिंग. सौरभ सर आल्सो लिखते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं. पता नहीं क्या-क्या करते हैं, टीटी भी खेलते हैं. तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं इंटिमिडेटिंग हो जाता था. अ, पर मैंने पूरी कोशिश की कि जैसे कि तारा है फ़िल्म में, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली है, तो उस तरह की कोशिश मैंने भी की फ़िल्म की शूटिंग के दौरान. अब देखते हैं ऑडियंस को कैसी लगती है. साथ में मिलकर क्या कुछ आप लोगों ने मस्ती की, एनी सॉर्ट ऑफ मेमोरीज यू वांट टू शेयर विद अस? In memories, we were shooting the first schedule in वाई. तो वहाँ एक बहुत सिक्लूडेड से हिली एरिया में हमें छोटा-सा सेक्शन एक वहाँ शूट करना पड़ा बिकॉज़ ऑफ सौरभ शुक्ला's डेट्स. बट बिकॉज़ ही इज़ सो बिज़ी, उनके लिए दूर ट्रैवल करना मुश्किल था. तो बम्बई के पास महाराष्ट्र में ही उन्होंने एक छोटा-सा 7 दिन का शेड्यूल हमने वहाँ पे किया था. तब हम लोग शाम को बहुत
बैठते थे और इट वाज़ इंटरेस्टिंग क्योंकि ये 5-6 दोस्त और काफ़ी पुराने दोस्त 10 साल, 20 साल पुराने दोस्त बैठते थे और बातें करते थे, जोक सुनाते थे और बहुत सारा गाना गाते थे, व्हिच वाज़ लॉट्स ऑफ फन। दे वुड प्ले म्यूज़िक एंड सिंग। तो इट वाज़ वेरी नाइस टू हैंग आउट विद देम। बहुत मज़े आए क्योंकि प्रॉपर कलाकारों के साथ बैठ के कभी शाम को जब गाना बजाना होता है तो बहुत एक आनंद का माहौल होता है हर जगह। तो वो सब बहुत स्पेशल मेमोरीज़ हैं। मैम, फैमिली का क्या रिएक्शन आया आपके आफ्टर सीइंग द ट्रेलर, आफ्टर सीइंग तारा's रोल इन द फिल्म? फैमिली का क्या कुछ रिएक्शन आया? फैमिली वो मैं चाहती हूँ फ़िल्म देखें, उस पे रिएक्ट करें। लुक देख के तो थोड़े दिन देर के लिए कन्फ्यूज़ हो गए थे। उनको लगा मैंने बाल कटा लिए हैं तो पर फैमिली को आई होप फ़िल्म पसंद आए। वो भी मेरे लिए ऑडियंस की तरह ही हैं। एंड दे कैन बी क्वाइट क्रिटिकल व्हिच इज़ आल्सो गुड। इट कीप्स मी वेरी ग्राउंडेड। Okay, ma'am, one thing I want to ask, like after so much of hard work and your role is so amazing, so powerful, but sometimes there are some people who troll unnecessary. How you tackle it? आई डोंट टैकल इट। सी व्हाट हैपेंस इज़ कई बार उनको बहुत सीधी-सी बात है अगर मुझे बुरा नहीं लगता पहली बात तो। मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़िंग लगता है, येस आई गेट कन्फ्यूज़्ड बट मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों में जो गुस्सा है, वो कहीं न कहीं निकल जाता है। अगर उनको किसी चीज़ को लेकर मुश्किल हुई है, उनको लगता है कि कोई चीज़ आपत्तिजनक है, तो आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ही बार एक्सप्लेन कर दो कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी या आप ये भी कह सकते हो कि हमने किया ही नहीं, इसमें मेरा हाथ नहीं था, फिर भी उनका गुस्सा बरकरार रहता है। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि चल भाई बोल लो, जो इतना गुस्सा है निकाल लो, कहीं न कहीं तो निकलेगा। इस फ़िल्म में अनफॉर्च्यूनेटली थोड़ा बहुत ऐसा हुआ है बट देखिए फ़िल्में हमेशा के लिए बनती हैं। मुझे पता है मैंने क्या बनाया है, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत से बनाया है और किन रिसोर्सेज़ में हमने शूट किया। किस तरह का किस तरह का ऑपोज़िशन मुझे खुद मिला जब मैंने बोला मैं ये फ़िल्म करना चाहती हूँ। तो कुछ मेरे भी शुभचिंतक थे, उन्होंने बोला ये पॉलिटिकल चीज़ों पे या ऐसे कास्ट जैसी चीज़ों पे कुछ नहीं बनाना चाहिए, बहुत निंदा होती है, हो भी रही है। पर मैं ये सोच रही हूँ कि आज आज से अगर 4-5 साल बाद लोग ये ट्विटर पे जो हो रहा है वो याद रखेंगे कि जो फ़िल्म ने कहा और जो हमारे काम ने कहा वो याद रखेंगे। तो ऑब्वियसली आई थिंक इफ द फिल्म कैन स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम जो कहने की कोशिश कर रही है, वो इन छोटी-मोटी कंट्रोवर्सीज़, धमकियाँ, ट्रोलिंग इस सब से कहीं ज़्यादा बेहतर है और बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है। तो अ, आई डोंट रियली थिंक अबाउट ट्रोल्स अनफॉर्च्यूनेटली। ट्रोल्स को काफ़ी दिल दुखता है, कई बार वो कंप्लेन भी करते हैं कि हमें ब्लॉक कर दिया, हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे। बट सच तो यही है, आई डोंट केयर अबाउट दैम। Wow. Ma'am, but anything you want to say to many like सोशल मीडिया आजकल फायदेमंद भी है बट कहीं ना कहीं लाइक आज भी बहुत सारे जन ट्रोल कर रहे हैं वेदर इट्स अ फीमेल और मेल, काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, सम गेट्स इनटू अ डिप्रेशन, तो एनीथिंग यू वांट टू सजेस्ट टू देम? आई थिंक ये जो एक विशियस सा एटीट्यूड है ऑनलाइन, जिसमें आप पहले किसी की क्रिएटिविटी को आप पहले मज़ाक उड़ा देते हैं, मतलब किसी ने पेंटिंग बनाई या कोई फ़िल्म बनाई या कुछ लिखा, सबसे पहले लोग उसमें से नुक्स निकालते हैं, उसके बाद शायद कोई तारीफ़ करता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है नेगेटिविटी का, वो दोनों लोगों को अफ़ेक्ट करता है। उसको भी जो बेवज़ह नेगेटिविटी फैला रहा है और उसको तो करता ही है जो रिसीविंग एंड पे होता है। तो आई थिंक ये सोशल मीडिया पे जो हो रहा है मतलब बेलगाम जो चीज़ चलती जा रही है जिसमें गाली-गलौच से लेकर फेक फ़ोटोशॉप वाली न्यूज़ से लेकर कुछ भी, वो जो चल रहा है उससे हम सबको बचना चाहिए बिकॉज़ इससे दुनिया में बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग हो जाते हैं। अपनी बात पे पक्के अड़े हुए लोग जो जो दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते या जो पहले ही विश्वास कर लेते हैं कि हम जो हैं सही हैं और तुम और तुम्हारी नीयत भी गलत है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं
चाहे वो यूएस की बात हो या कहीं जो भी रूमर या उस तरह की चीज़ें होती हैं, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है समाज पे। तो हम सबको सोशल मीडिया बहुत बैलेंस्ड तरीके से यूज़ करना चाहिए। कभी-कभी मुझे लगता है कि अगर मैं एक्टर नहीं होती, तो क्या इतना एक्टिव होती सोशल मीडिया पे? शायद नहीं। ओके मैम, लास्टली क्या कुछ आप फैंस को कहना चाहेंगे, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ फैंस जिन्होंने आपके किरदार को काफी अप्रिशिएट किया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस यार पिक्चर देखो जाके हॉल में, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। का आर्टिस्ट के लिए तो यही सबसे बड़ी बात है कि उसके काम को देखा जाए, सराहा जाए। बिल्कुल। आगे सराहा जाए तो देख लो, वो भी चलेगा, बट मैं चाहती हूँ कि लोग इस फ़िल्म को देखें। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच मैम, इट वाज प्लेजर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू ज़ोया, थैंक यू।